Hello, students. Good morning, all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. Students, today we would be doing the revision of our grammar chapters as we have completed the revision of our course book, Unit 6, in which we have completed two sections. Section 1, the Lob's Girl, and Section 2, the Canterville Ghost. Okay, so let's start our revision with chapter number 16, that is sentences. As you know, students, that sentences are made up of two things, right? We have already learned that it is subject and predicate. Normally, a sentence is divided in two parts. One is subject and one is predicate. And I hope that you remember what a sentence is, right? Sentence क्या होता है? A group of words that make complete sense. और उसके पीछे जो punctuation marks होते हैं, that could be full stop, a question mark, an exclamation mark. Okay? It can be any of these. And as you know, subject can be three things. The first one is about which we are talking in the sentence. जैसे कि roses are beautiful flowers. Are beautiful flowers. What does it say? It talks more about the roses, right? So that is our subject. Second, which performs the action. That means the doer of the action. Post jumped over the moon. Who jumped over the moon? Post, right? And third one is it is affected by the action. That means that is something which is affected by the action. मतलब verb का receiver होगा वो sentence में. Okay. So I hope that you are clear what is subject, right? It can be the doer of the action, receiver of the action, or it can be affected by the action, and it can be something about which the rest of the sentence is talking about, right? We also studied phrase. Phrase is also a group of words. लेकिन phrase और sentence में difference क्या होता है students? The only difference between two of them is phrase does not have a complete sense. ठीक है? phrase का पूरा meaning नहीं होता है जबकि sentence का पूरा मतलब होता है. और phrase के अंदर subject और verb दोनों चीज़ें नहीं होती है जबकि sentence के अंदर होती है. Okay? And phrase can be in the place of any parts of speech. मतलब वो noun की जगह पर हो सकता है, verb की जगह पर हो सकता है, adjective की जगह पर हो सकता है, adverb की जगह पर हो सकता है, right? इसीलिए उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि noun phrase है, adjective है, adverb phrase है, right? verb phrase है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि noun की जगह पर एक word की जगह पर 3-4 words यूज़ किए गए हैं तो उसको हम noun phrase कहेंगे. ओके, यू सी द डेफिनेशन ओवर हियर. अ noun phrase इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेइंग द पार्ट ऑफ noun. जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. द मैन इन द रेड शर्ट इज माई फादर. सो कौन है मेरा फादर? वो आदमी. बट इंस्टेड ऑफ ओनली मैन दे हैव रिटर्न द मैन इन द रेड शर्ट. नाउ दिस होल थिंग इज अ सब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन की जगह पर उन्होंने 3-4 वर्ड्स का पूरा ग्रुप है वो यूज़ किया है, राइट? सो दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज. बोथ दोज बुक्स आर रेक्सीज. दोनों ही बुक्स रेक्सी की है. सो बोथ दोज बुक्स, दैट इज मोर देन वन वर्ड, राइट, विच इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज. अभी ये एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है. यू कैन गो थ्रू इट इन द प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको पहले भेजा था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी. आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट इट इज़. हियर यू नीड टू सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. जैसे कि यू टेक गुड केयर ऑफ योर डॉग. ओवर हियर एक्शन कौन कर रहा है? यू, राइट? तो यहाँ पे यू जो है वो है हमारा सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज प्रेडिकेट. ओके, इन द सेम वे यू हैव टू कैरी आउट होल एक्सरसाइज. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस.
नाउ नॉर्मली देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट. एक होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड द फोर्थ वन इज इम्परेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? जो नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या डिक्लेयर कर रहा है. ओके, डिक्लेयरिंग अ फैक्ट, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट, या फिर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, आई गो बैक टू बेड अर्ली. ये सारी चीज़ें जो एक किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. और असर्टिव सेंटेंस नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, राइट. अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है. एक होता है येस नो क्वेश्चन, मतलब जब भी आप कोई सवाल पूछते हो तो उसका आंसर आपको येस या नो में मिलता है. जैसे कि आर यू हंग्री? येस आई एम. कैन यू सिंग? येस आई कैन और नो आई कांट. कैन यू सिंग, सॉरी, डू यू लाइक जलेबीज? येस आई डू या फिर नो आई डोंट, राइट. तो ये हो गए आपके येस नो क्वेश्चंस. उसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं WH वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये वाले, द क्वेश्चंस विच बिगिन विथ हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, whose, वेयर, हाउ, राइट. उनसे जो स्टार्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है. और आता है क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस के पीछे हम एक क्वेश्चन का एडिशन करते हैं, और वो क्वेश्चन नॉर्मली 2 ही चीज़ों से बनता है. एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. Let's see the example for that. If you see example B, grandma isn't angry, right? So your student, when you are forming a question tag, you need to remember one thing, कि आपका question tag जो होगा वो opposite होगा. मतलब अगर आपका verb जो है sentence में वो positive है तो आपका tag negative होगा, और अगर आपका sentence negative है या फिर आपका verb negative है, then your question tag has to be positive. For example, grandma isn't angry. If you see this portion, right, it's a negative sentence, right. तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे. यहाँ पे जैसे एक ही वर्ब है, वैसे तो इज़ ही है यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में 2 वर्ब्स भी होते हैं तो आपको इज़, एम, आर जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ कर सकते हो, डू, डज या डिड यूज़ कर सकते हो, वॉज, वर यूज़ कर सकते हो, राइट. या फिर मॉडल्स आए हो तो मॉडल्स यूज़ करने हैं, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. एंड अगर आपका सेंटेंस आपका वर्ब नेगेटिव है, जैसे कि इसमें है, राइट, इज़ नॉट, तो उसके बदले हम टैग में पॉजिटिव कर देंगे इज़. और आपका जो सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बदले यूज़ होने वाला प्रोनाउन लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे ग्रामा है तो उसका ग्रामा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. देन द थर्ड थिंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस और टू और फोर्स इन योर लैंग्वेज. नॉर्मली व्हेन वी टॉक, व्हेन वी स्पीक, राइट, हम जब भी बात करते हैं या बोलते हैं तब हमारे फेस पर एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वेदर यू आर सरप्राइज्ड, you are happy, you are angry or excited, whatever it is, right. But when you are writing it down at that time to express your feelings and emotions, we write exclamatory sentences और उसके एंड में हम ये वाला मार्क लगाते हैं, ठीक है, that is exclamation mark. Okay, for example, we were supposed to go to Grand Canyon, right, that is showing an anger, so that is an exclamation mark. Yay, I got A plus on my maths test. That is showing happiness. What a beautiful voice you have, right? So that is admiration. And how clever you are. That shows, that again shows an admiration, right? तो ये आपको ध्यान में रखना है, okay?
And the last thing we are going to learn is imperative sentences. Imperative sentences normally assertive sentence जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम नॉर्मली कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं? रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड्स या फिर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर वार्निंग. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन imperative sentences. Imperative sentences begins with the verb also with please in a request, ठीक है. दैट मीन्स के काफ़ी सारे imperative sentences ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेकेंड पर्सन होता है वो, मतलब यू, राइट. इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नाउ इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग टू यू एंड आस्किंग यू टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट टच द वायर, दैट इज़ वार्निंग. Move the lid clockwise to open, that is an instruction. And charge your phone battery regularly, that is an advice. Okay, now these exercises are need to be done by you, right? Declarative, interrogative and exclamatory. In the same way, we have an exercise over here where you need to say whether it is assertive, interrogative, exclamatory or imperative sentences. जैसे कि दूसरा वाला है, विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. हाउ स्मार्ट यू आर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी, राइट. कीप ऑफ द ग्रास, दैट इज इम्पेरेटिव. पुट योर टॉयज अवे, इम्पेरेटिव. वॉट अ वंडरफुल डे, दैट इज अगेन एक्सक्लेमेटरी. प्लीज क्लीन योर रूम टुडे, दैट इज imperative, it's a request. I have 3 pens in my purse, that is just a normal sentence, so it is an assertive sentence. Okay, वैसे ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और ये जो सेंटेंसेस इधर जो वर्ड्स दिए हैं उसको रीअरेंज करने हैं और ब्रैकेट में जो दिया है वैसा वाला सेंटेंस आपको बनाना है. इम्परेटिव है तो इम्परेटिव बनाओ, एक्सक्लेमेटरी है या इंटरोगेटिव है, सो वैसे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है. Now let's move on to the next chapter, that is subject verb agreement. Now what is subject verb agreement? Subject और verb जो है आपके सेंटेंस में, उन दोनों के बीच में नंबर को लेकर एग्रीमेंट होना चाहिए. मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, right? That is called subject verb agreement. Okay, so if you see the table over here, which is very important, you can just understand it. For example, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, right, तो उसमें बी वाला जो वर्ब्स है, बी मतलब बी फॉर्म वाले वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, तो एम यूज़ करेंगे. और हैज़, हैव, हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें हमें यूज़ करना है हैव अगर प्रेजेंट टेंस है तो, और पास्ट टेंस है तो हम हैड यूज़ करेंगे. एंड डू, डज, डिड के अंदर आई के साथ डू यूज़ होगा इफ़ इट इज़ प्रेजेंट टेंस, एंड पास्ट टेंस है तो डिड यूज़ करना है. और जो हमारे बाकी के वर्ब्स हैं, मतलब एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, राइट, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं वॉक, रन, गो, कैच, वो भी हमारे प्लूरल होंगे. वी डोंट हैव टू राइट सिंगुलर वर्ब. अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके अंदर हमें एस ऐड करना पड़ता है टू मेक द वर्ब सिंगुलर. ओके, रिमेंबर, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं उस टाइम पर, ठीक है, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं उस टाइम पर हमारा जो थर्ड पर्सन रहता है सिंगुलर, है ना, उसके लिए हमें वर्ब में एस का साउंड ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है. सो नीड टू रिमेंबर दैट. बाकी जिसके अंदर हम एस नहीं ऐड करते हैं या एस का साउंड नहीं होता है वो हमारे प्लूरल वर्ब्स है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट यू, वी एंड दे, एट दैट टाइम हमारा बी वर्ब कौन सा होगा? आर. एंड यू आर गोइंग टू यूज़ हैव अलॉन्ग विथ इट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट टेंस, एंड हैड इफ़ इट इज़ पास्ट टेंस. वैसे ही डू, डज, डिड में डू यूज़ करोगे अगर प्रेजेंट टेंस है, यू, वी, दे के साथ,
एंड डिड यूज़ करोगे अगर वो पास्ट टेंस है. एंड अगेन योर एक्शन वर्ड्स शुड बी प्लूरल. ठीक है, इन सब के साथ आई यू वी एन दे, इनके साथ हमारा जो एक्शन वर्ड होगा वो प्लूरल होगा. एंड when we are talking about third person singular, he she and it, तो उसके साथ जो हमारा बी वर्ब होगा वो होगा is, right. एंड हैज़ हैव हैड में आपको यूज़ करना है हैज़. रिमेंबर दिस, प्रेजेंट टेंस में हैज़ यूज़ करोगे आप ही शी इट के साथ, और डज यूज़ करोगे अगर प्रेजेंट टेंस है तो. ठीक है, और हैड होगा पास्ट टेंस के लिए और डिड होगा पास्ट टेंस के लिए, वो कॉमन रहता है सबके लिए. एंड योर एक्शन वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आपको एस ई एस आई ई एस जिस तरह से एडिशन होता है वैसे करना है. ठीक है, आपके वर्ब को सिंगुलर रखने के लिए. रिमेंबर दैट. ओके. एंड स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट. नॉर्मली हमने अभी आगे वाले चैप्टर में ही पढ़ा कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके जगह पर, नाउन की जगह पर अगर 3-4 वर्ड्स का ग्रुप है देन इट इज़ कॉल्ड फ्रेज, राइट. एंड इट वुड बी कॉल्ड नाउन फ्रेज. सो इन सच केसेस यू नीड टू रिमेंबर कि आप जब भी सब्जेक्ट अंडरलाइन करते हो या आइडेंटिफाई करते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने सही वाला जो फ्रेज़ है वो आइडेंटिफाई किया है जो सब्जेक्ट की जगह पर है, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन होगा. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. दैट मीन्स इट कैन बी अ नाउन फ्रेज ऑल्सो. सो हियर इफ यू सी द एग्जाम्पल, द गर्ल whose book I borrowed has not come to class today. The girl whose book I had borrowed has not come to class yesterday. यहाँ पे जो गर्ल है वो स्कूल नहीं आई है, हैज़ नॉट कम, राइट. सो ये हैज़ जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री कर रहा है, बुक के साथ या गर्ल के साथ, गर्ल के साथ. तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, गर्ल होगा. ठीक है, और उसके लिए हम कौन सा वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स oversees all the transaction. Here the board of director is a noun phrase, right. है ना, वो एक सिंगल यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है ना. तो उसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. इन द सेम वे द कार आई बॉट लास्ट वीक इज ब्लू. सो हियर द कार आई बॉट लास्ट वीक इज रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट, और कार की जगह पर ये पूरा फ्रेज है. तो कार के लिए हम कौन सा वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे. ठीक है. इन द सेम वे द मेंबर्स ऑफ क्लब हैव टू साइन देयर नेम एट द गेट एज दे कम इन. द मेंबर्स ऑफ क्लब मतलब सब्जेक्ट हमारा, है ना, और मेंबर्स ऑफ क्लब मतलब काफ़ी सारे हैं. तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा दे. ठीक है, एंड दे इज़ एग्रीइंग विद द वर्ब हैव ओवर हियर. ठीक है, दे हैव. समझ में आया आपको. नाउ इफ द सेंटेंस हैज़ देयर इन इट, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्ब पहले आएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. ठीक है. So whenever you place the verb in the sentence, if the sentence begins with there, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस there से स्टार्ट होता है और आपको verb रखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके बाद जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, उसके बेसिस पर आप इज एम आर हैज़ हैव वॉज वर लगा सकते हो. ठीक है, जैसे कि देयर डैश ओनली 12 स्टूडेंट्स इन द स्कूल बस येस्टरडे. सो हियर इफ़ यू सी स्टूडेंट्स, हम 12 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, और येस्टरडे मतलब पास्ट टेंस है तो हम वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे. इन द सेम वे देर आर सम थिंग्स विच नीड टू बी रिमेंबर्ड. जैसे कि अगर 2 सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर 2 सब्जेक्ट है या फिर एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा. जैसे कि जॉन एंड जॉर्ज. जॉन एंड जॉर्ज मतलब कितने लोग हुए, 2 हुए, है ना. तो उसके लिए हमने
वो दोनों किसको प्रेजेंट करते हैं, दे को, है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमारा जो वर्ब होगा वो होगा वर, है ना। प्रिया एंड हर फ्रेंड्स, प्रिया सिंगुलर है और हर फ्रेंड्स प्लूरल है, मतलब वो दे को प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो है आर, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वो भी पहला वाला ही है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं वो एक ही आदमी को रेफर कर रहा है, जैसे कि द राइटर एंड द हीरो ऑफ दिस प्ले वॉज सुनीत। सो सुनीत इज रेफरिंग टू बोथ, राइटर को भी और हीरो को भी, है ना। राइटर और हीरो दोनों एक ही आदमी है, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब जाने वाला है वो भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है, ये याद रखना। देन with or as well as, when two nouns or pronouns are joined with or as well as, the verb agrees with the first one, मतलब पहला वाला जो नाउन है उसके साथ ही हमारा वर्ब एग्री करना चाहिए। जैसे कि जॉन विथ ऑल हिज फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू मूवी, सो योर स्टूडेंट्स जॉन विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, मतलब जॉन हमारा पहला सब्जेक्ट और ऑल हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन हमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है, इसीलिए हमने यूज़ किया है हैज़। वैसे ही दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ स्कूल, यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट दे है और दूसरा सब्जेक्ट आई है ना। तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट को रेफर करना है दे, और दे हमारा सिंगुलर है इसीलिए हमने आर यूज़ किया है। वैसे ही वर्ड्स लाइक ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, अ लिटिल, वन डिनोट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही जाएगा। आप एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हो स्टूडेंट्स अपने आप, ठीक है। फिर मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, ये सारे जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा रेफर करेंगे वो लोग, इसीलिए उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे कि सेवरल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स मतलब दे, है ना, काफ़ी सारे हैं इसलिए, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो है हैव मिस्ड, है ना। सो हैव जो है वो किसको प्रेजेंट करेगा, प्लूरल को। फिर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, दे लुक लाइक दे आर प्लूरल बट इट एक्चुअली डिनोट्स वन आइटम इन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है, एक ही सब्जेक्ट है ना। तो उसके लिए हमें हमारा वर्ब कौन सा यूज़ करना है, सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, लेकिन वो एक कंट्री को प्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इज़ यूज़ करेंगे। द टेल्स ऑफ बीटल द बार्ड, दैट इज़ द नेम ऑफ वन बुक, है ना, इसीलिए उसके साथ भी जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर 2। यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, पहली वाली जो है उसमें आपको नाउन फ्रेजेस को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। जैसे कि द जैसलमेर फोर्ट, राइट, इट रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, इट लिखेंगे। द हाउसेज दैट वर डिस्ट्रॉयड, योर हाउसेज बहुत सारे हैं, है ना, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे, ठीक है। वैसे ही पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, और ये जो नीचे एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो देखने के बाद आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, वो लगाना है। ओके, I have already sent you the exercises in the PDF also, and we have already done all the exercises in video and also in the live class. But still, if you are not able to understand, go through the previous videos and you can message me if you have any other doubts. I would be sending you the worksheet related to the grammar. Try to do it so that your exams would be going smoothly. ठीक है, आपका पहला ही पेपर है इंग्लिश का, मैं तुमको वर्कशीट सेंड करूँगी, तो वो ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारी एक्सरसाइजेस की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम
and thank you.